گزشتہ ہفتے 8 فروری کو حکومت نے معاشی میدان میں بے مثال کامیابیوں کا دعویٰ کیا. معیشت کی بہتری کے ان حکومتی دعووں پر خود 2 روز پہلے اسٹیٹ بینک کے قرض کے حوالے سے جاری جو اعداد و شمار ہیں ان پر بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے. ان اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 1 سال میں پاکستان پر قرضے اور واجبات 6,106 ارب روپے بڑھ کر ریکارڈ 88,000 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں. دسمبر 2023 تک ملک پر قرضوں اور واجبات کا حجم 81,904 ارب روپے تھا. قرضوں میں اتنا بڑا اضافہ دیکھ کر سوال اٹھتا ہے کہ کیا شہباز حکومت نے قرضوں کے ریکارڈ میں پی ٹی آئی حکومت کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے؟ پی ٹی آئی دور حکومت میں 2018 سے 2022 تک 3.5 سال کے دوران جو حکومت کا مجموعی قرضہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق تھا وہ 23,665 ارب روپے اضافے سے 53,544 ارب روپے سے زیادہ ہو چکا تھا، جس کے ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی کی حکومت ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لینے والی حکومت بن گئی تھی. لیکن اب شہباز حکومت کے 2 ادوار میں تقریباً 2.5 سال ملا کر ملک کا مجموعی قرضہ 35,000 ارب روپے بڑھ کر 88,000 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز سرکار سب سے زیادہ قرضہ لینے والی حکومت بن گئی ہے؟ صرف یہی نہیں، موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے حکومتی معاملات اور خرچے کم کرنے کے لیے اصلاحات کا پروگرام پیش کیا، جس کے تحت کئی حکومتی ادارے ختم کرنے اور ہزاروں اسامیاں ختم کرنے کے اعلانات بھی ہوئے. ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا مزید بوجھ ڈالا گیا، اور ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں اور مہینے ہیں یہ بوجھ اس میں مزید بڑھایا جائے گا. لیکن دوسری طرف اسی حکومت نے اس بچت مہم اور ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے دوران ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور اس کے لیے سرکاری خزانوں کے منہ کھولے. اراکین پارلیمنٹ کی ترقیاتی سکیمز کے لیے فنڈز جاری کرنے کی رفتار یہ بھی بڑی اچانک تیز ہوئی اور اس مد میں 3 گنا زیادہ رقم جاری کرنے کی منظوری ہوئی. ایف بی آر جو ٹیکس اکٹھا کرنے کے مشن میں تو ناکام رہا ہے، لیکن وفاقی کابینہ نے ایف بی آر افسران کے لیے 5.25 ارب روپے کی 1,000 سے زائد گاڑیوں کی منظوری بھی جھٹ سے دی. لیکن جب عوام جو ان تمام حکومتی شاخرچیوں کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر بھاری بھرکم ٹیکس بھر رہے ہیں ان کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو حقائق یہ ہے کہ پیٹرول پر عوام کو ملنے والے جو ریلیف پر بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے. کل حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، لیکن وہ کمی نظر نہیں آئی جس کی نوید کئی دنوں سے سنائی دے رہی تھی. خبریں ہیں کہ حکومت نے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مکمل ریلیف سے محروم کرتے ہوئے تیل کمپنیز کے ٹرانسپورٹ چارجز اور مارجن میں اضافہ کر دیا ہے. صرف یہی نہیں ہے، جو تنخواہ دار عوامی طبقہ ہے جو پہلے سے ٹیکسز کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس وقت ٹیکس دینے والا ملک کا تیسرا بڑا شعبہ بن چکا ہے، اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب ایف بی آر اسی تنخواہ دار طبقے سے مزید 54% ٹیکس لے گا. ایک طرف کامیابیوں کے دعوے ہیں، عوامی ریلیف کے اشتہارات ہیں، اور جو حقیقت ہے وہ بالکل الٹ ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے بلال اظہر کیانی صاحب معزز مہمان ہیں، رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں اور سن بھی رہے تھے سب کچھ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا ہے سر، یہ رپورٹس ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے، عوام پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر مزید بوجھ آ رہا ہے، اور وہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، قرض کی پیتے تھے میں اور کیا لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. سر دیکھیے کرن صاحبہ، حقیقت بالکل وہی ہے جو حکومت بیان کر رہی ہے، اور یہ جو میں بیان کر رہی تھی نہیں دیکھیے وہ اس پہ پھر میں اب ایک ایک کر کے، کیونکہ لمبی چارج شیٹ ہے، اور کاش آپ نے اسی ابتدائیے میں فار دی سیک آف فیئرنیس یہ بھی کہا ہوتا کہ مہنگائی واقعتاً 2.4% پر ہے جو 9 سال کی کم ترین شرح ہے. ملک واقعتاً ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر سے اب گزر رہا ہے، اور پالیسی ریٹ آئی ایم ایف پروگرام بھی سٹیبل ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام اگری بھی ہوا، ہم ڈیفالٹ سے بھی بچے. آج واقعتاً آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو 15 ارب ڈالر پر ہیں، جو کہ عام طور پہ فارن ایکسچینج ریزرو ہی ہماری ضرورت بنتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف جانے کے، یا ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو کمی ہی باعث بنتے ہیں ہمارے معاشی کرائسس کا. ساتھ ہی ساتھ
पॉलिसी रेट जो 22% पे था, जिसका एक वाकयातन एक असर होता है मईशत पर कि वो ये कर्जे का रेट का तयन करता है जिस पे कारोबार कर्जे लेते हैं, वो 22% से आज 12% पर आया हुआ है। 12% से भी कम की शरह के ऊपर आज कारोबार कर्जे ले सकते हैं, जिससे मुआशी एक्टिविटी में इजाफा हुआ है। और IMF समेत दीगर बैनुल अक़वामी इदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि मुल्क एक मुआशी स्टेबिलिटी में आ गया है। आज करंट अकाउंट सरप्लस है, इस माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट सरप्लस होता है तो ही आपके फॉरेन एक्सचेंज बैंक के 88,000 अरब रुपए का जो रिपोर्ट है, जो मेरी गुजारिश है, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपका जो हुकूमती कर्जा है ना जी, जिसे पब्लिक डेट कहते हैं, वो 74,000 अरब रुपए है। और ये जून से अगर हम मुवाजना करें तो सिर्फ 3,000 अरब रुपए इसमें इजाफा हुआ है। मगर मेन बात जो है वो ये है कि आपकी जो डेट टू GDP रेशियो है, जो कि आपके कौमी कर्जे का तनासुब आपकी कौमी आमदन से होता है, उसकी अभी शरह जो है वो तकरीबन 67.5% है, जो पिछले 5 साल की कम तरीन है। महंगाई की शरह 2.4% जो पिछले 9 साल की कम तरीन। आपकी डेट टू GDP रेशियो जो कि 67.5% है, वो पिछले 5 साल की कम तरीन। और इसकी अहमियत क्या है आम आवाम के लिए? इसकी अहमियत ये है कि एक तरफ आप देखते हैं आपका कर्जा क्या है, दूसरी तरफ आप कौमी आमदन देखते हैं ताकि आप ये देख सकें कि आपकी कर्जा पे करने की सलाहियत क्या है। तो एक तरफ आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है, जो आपकी जिससे आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़े और आपकी डॉलर के कर्जे रीपे करने की सलाहियत बढ़ती है। दूसरी तरफ आपका प्राइमरी सरप्लस है, जो कि आपके हुकूमती रेवेन्यूज और अखराजात, अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को निकाल दें तो हुकूमती रेवेन्यू आपके अखराजात से ज्यादा है पहले 6 माह में। और इस साल हमने प्राइमरी सरप्लस ही हमारा टारगेट है और हम उसके लिए ऑन ट्रैक हैं। तो देखिए, हरगिज़ मगर मुझे एक बात करनी चाहिए कि साहिबा, मैं हरगिज़ आपके सामने ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें बह रही हैं। मैं हरगिज़ आपके सामने ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो अच्छा हो रहा है ना, उसकी हम तारीफ भी कर रहे हैं। क्योंकि इब्तिदाई में जिक्र नहीं हो तो इसलिए मैं बात दोहरा रहा हूँ। अच्छी बात है, आप तस्लीम करिए, मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए। मगर देखिए, मुश्किलात हैं। क्या ये हम मानते हैं कि सैलरी क्लास के ऊपर आज टैक्स हाई है? बिल्कुल है। मैंने जो बात की ना, आप इसको मजीद आसान कर दें, सादा कर दें आवाम के लिए। आप ये बता दें कि जो 3 साल में हर साल का 10,000 अरब आप लगा लें, 3,000 अरब जो है वो बढ़ा है, 30,000 अरब बढ़ा है 3 साल में। ये किस तरह से बढ़ा है? एक तो हुकूमती कर्जा तकरीबन मेरे ख्याल से जी 2000 आप कह लें 23 जून 2023 से लेके में तकरीबन 50,000 अरब के लगभग था और आज 74,000 अरब के है। उसके अंदर भी जरा देखिए लीजिए कि जब हम 88,000 अरब जो नंबर दे रहा है, वो देखिए, एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें ना, क्योंकि 88,000 अरब है टोटल डेट एंड लायबिलिटीज। हुकूमती जो कर्जा है, जो ग्रॉस पब्लिक डेट है, वो 74,000 अरब है। अब इसके अंदर भी देख लीजिए, जो आपने जिस तरह का पीटीआई के नहीं, बल्कि 2000 ये भी आप कर लें, जून 2022 से लेके 2025 तक। आप यानी कर्ज और वाजिबात दोनों अलग अलग कर रहे हैं? नहीं, मैं हुकूमती कर्ज का हुकूमती कर्ज से ही मवाजना कर रहा हूँ। जून 2022 में कर्ज तकरीबन 50,000 अरब रुपए से ऊपर था, जो कि PTI की उस टाइम पे हमें और अब 24,000 अरब बढ़ा आपके मुताबिक? नहीं, मगर उसके दौरान भी देखिए, पहले तो PTI के दौर के अंदर कर्जा डबल हुआ, तकरीबन 25,000 अरब से 50,000 अरब तक गया। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमारे एक साल के अंदर जो इजाफा हुआ 22 से 23 के दरमियान, वो मामूली साल नहीं था। वो डिफॉल्ट की तरफ धकेला हुआ एक मुल्क था, जिसके अंदर हमने एक इमरजेंसी में PTI के साथ ही तोड़े हुए मुआहदे को हमने बाकी रिवाइव किया। एक आग लगी हुई थी, उसको हमने बुझाया। उस साल में एक खसारा हुआ, जिसके नतीजे में आपके कर्जे में तो एक इजाफा हुआ, मगर मुल्क में एक मुआशी स्टेबिलिटी आई, आप मुल्क डिफॉल्ट से बचा। उसके बाद एक साल तकरीबन आप देख लीजिए तो वो केयरटेकर का साल था। अगर आप देख लीजिए तो अक्सरियत हिस्सा जो आप जून 2023 से लेकर जून 2024 तक का जो हिस्सा है, उसके अंदर तो हमारी हुकूमत अगस्त में चली गई थी और फिर फरवरी के इख्तिताम में आके फिर हमारी हुकूमत आई। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस जून से जो दिसंबर तक के फिगर्स हमारे पास स्टेट बैंक के मौजूद हैं, तो उसमें सिर्फ 3,000 अरब रुपए का कर्जे में इजाफा हुआ है, मगर डेट टू GDP रेशियो में कमी आ रही है और हमारी कर्जे पे रीपे करने की सलाहियत भी बढ़ी है। इस माली साल के अंदर करंट अकाउंट का भी हमारा सरप्लस है पहले 6 माह में, प्राइमरी भी सरप्लस है। ठीक, अब मुझे बता दें सर, इस वक्त एक पाकिस्तानी कितने रुपए का मकरूज है सर? देखिए, ये तो फिगर कैलकुलेट करना, मगर ये फिगर बेमानी है। देखिए, ये कहना है हर शख्स के ऊपर इतना इस तरह होता नहीं है। देखिए, बुनियादी जो आपने बात की सैलरी क्लास की, जो शख्स को माजी में सर आप लोग कहा करते थे एक पाकिस्तानी कभी 1.5 लाख का फिगर आया, मैंने कभी नहीं कहा, आपने नहीं कहा, आपके रहनुमाओं ने कहा। मैं आपके सामने बैठा हूं जी, मैं एक मईशत का स्टूडेंट हूं, मैं फिगर्स में बिलीव नहीं करता। आपके रहनुमाओं ने कहा वो गलत? नहीं, मेरे रहनुमाओं ने, आप सामने क्लिप लेके आइए जी। बहरहाल देखिए, बात करने का मकसद ये है कि हमने डेट टू GDP रेशियो भी कम करना है, हमने कर्जे भी काबू में करने, हमने महंगाई काबू में करनी है जिस तरह हमने की है।
प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं कि सैलरी क्लास के ऊपर एक टैक्स का इशरा हम मानते हैं ज्यादा है, मगर ये अभी हम चादर देख के पांव फैलाते हुए अभी हमारी मजबूरी, हम इसको कम करना चाहते हैं। हम पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म तो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन वज़ीर खजाना उनको फौरन मना कर देते हैं, नहीं कर सकते। तो अब क्या आने वाले बजट में हो रहा है ये कम हो रहा है सैलरी क्लास पे? अगर स्पेस हुई, फिजिकल स्पेस हुई, तो जरूर कोशिश होगी कि इसको कम किया जा सके। और हम ये आपके सामने कोशिश हो रही है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो अपना फेयर शेयर नहीं टैक्स का अदा करे, वो अपना फेयर शेयर अदा करें। साथ ही साथ आपने देखा रेमिटेंसेस के अंदर अभी तो मजीद बताया जा रहा है कि पता नहीं कितने % मजीद जो है वो कर्जा डाला जाएगा। किसने बताया? सर खबरें आ रही हैं, आप कहते हैं गलत है। खबरें तो यहाँ पे रोजाना, आप कहें गलत, बिल्कुल गलत है। अभी बजट बनानी है, कौन खबरें बना रहे हैं? जो चीज हुकूमत आप सर कहें अवाम के लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात ही कोई नहीं होगी। आप कहें कि रिलीफ देने जा रहे हैं अवाम को। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये खबर इजाफे की गलत है, क्योंकि अभी बजट की तैयारी, यानी आप रिलीफ देने जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो आप बिल्कुल नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा, मेरे मुंह में आप अल्फाज भी ना डालें। मैं हाँ उम्मीद करता हूँ जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमने पिछले, आप चाह रहे हैं कि बजट पे आपके क्लिप्स निकल के ना चले? नहीं, देखिए मैं ऐसी कोई बात गैर जिम्मेदाराना नहीं करना चाहता जो करनी बनती नहीं है। हाँ, जहाँ पे मैक्सिमम आवाम के लिए रिलीफ हम मुश्किल हालात में दे सकते हैं, हम देंगे। जिस तरह पिछले साल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हमने मुश्किल हालात में भी 460 अरब से बजट लेके 590 अरब का किया, जिससे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सबसे कमजोर तबकात को दिए गए। इस साल भी अगर सैलरी क्लास के टैक्सेस में कमी की स्पेस बनी तो हुकूमत जरूर उस पे काम करेगी, मगर इसका हतमी फैसला आपको तकरीबन मई जून में मिलेगा जब बजट तैयार होता है। बिल्कुल ठीक। सर अवाम परेशान है वैसे ही महंगाई से। एक बात आप सही कर रहे हैं कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो रुक गई है। अब सर 1 लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी अदा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और मार्जिन इसके अलावा है, यानी 1 लीटर पर तकरीबन 80 रुपए इजाफी अदा किए जाते हैं। इसके बावजूद कल जो डीलर मार्जिन और जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो भी बढ़ाने की बात हो रही है, और फिर जो रिलीफ दिया जा सकता था उससे भी महरूम कर दिया गया, फिर वो बढ़ा दिया गया। सर ये क्या हुआ? आपने देखा है पिछले 1 साल में, आप फिगर्स निकाल लिए, मेरा ख्याल है लगभग आई थिंक ओवरऑल पिछले 1 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ओवरऑल कमी आई है। हर 2 हफ्ते बाद इसकी रिवीजन होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। हुकूमत जब भी कोई इंटरनेशनल प्राइसेस में, आपको पता है ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन 2 चीजों से होता है। एक आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट से, जो अल्हम्दुलिल्लाह IMF प्रोग्राम में होने की वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से हमारा डॉलर का, मुझे किसी सवाल का जवाब तो देने दीजिए। आपके कान के अंदर आपके नहीं, मेरा जवाब नहीं सुनती ना शायद प्रोड्यूसर आपके जल्दी में, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सवाल आते हैं, मगर मैं आपका कोई सवाल का क्योंकि इस तरह गुजरने नहीं दूंगा। मैं जवाब मैं आपसे जवाब दे रही हूँ, वो मुझे सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ब्रेक लेना है। नहीं, ब्रेक लेने, फिर या तो मुझे पेट्रोल की कीमत का जवाब देने दीजिए। देखिए पेट्रोल की और डीजल की कीमतों का जो तयन है वो 2 चीजों से होता है। एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट से। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेबल है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का जो उतार चढ़ाव वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जब चढ़ाव होता है तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि पास ऑन करें, मगर कम करें, मगर जब कमी होती है खास तौर पे तो पूरा मुकम्मल पास ऑन होता है। ओवरऑल पिछले 1 साल के अंदर मेरा ख्याल है कि मैं फिगर्स चेक कर सकता हूँ, ओवरऑल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है, गुज़िश्ता रोज भी कमी आई है। तो इसी तरह जी जो भी हमारे पास स्पेस होगी जहाँ पे रिलीफ हमने फॉरवर्ड करना होगा, पास ऑन करना होगा पाकिस्तानी शहरी को, हम पास ऑन करते रहेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बिलाल कियानी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।